Hello viewers, this is Namita Banerjee. I'm coming up with my new video. First of all, sorry for some reason I haven't uploaded videos for a long time. But yeah, today I'm here with my new session and rest of your topics of chapter 1. For all my new viewers and my existing viewers, welcome to my YouTube channel MB Classes. If you are new to my YouTube channel, please don't forget to like, comment, share and subscribe और हाँ वो जो बेल बटन है ना उसको जरूर दबा देना ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचे. So without wasting any more time, let's get started. तो जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने समझा था about photosynthesis and insectivores plant. So in this video we are going to understand about one another mode of nutrition, that is saprophytic mode of nutrition. So let's get started. Okay, what is saprophytes? Saprophytes क्या होते हैं? See, जैसे ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिनमें एग्जिस्ट होता है उन्हें हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं, राइट? जिनमें हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है उन्हें हम हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं. सिमिलरली the animal that possess saprophytic mode of nutrition in it is called saprophytes. Okay, let's see the definition. Some organisms like fungi had different mode of nutrition. If they grow on the bread, they absorb its nutrition from the bread. This mode of nutrition, in which organisms take its nutrition from dead and decaying matter, is called saprophytic mode of nutrition. Such organism with saprophytic nutrition is called saprophytes. So, हमें क्या सीखने को मिला यहाँ कि the organism neither depend on plants nor on animals, but yes, they depend on dead and decaying matter for their intake of nutrition and for their further survivals. Okay? तो यहाँ क्या होता है कि जो भी डेड और डिकेइंग मैटर होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम ब्रेड रख दें तो कुछ दिनों बाद हम ऑब्जर्व कर सकेंगे कि ब्रेड में कुछ ग्रो किया एंड दैट ग्रोथ इज नन अदर देन ऑफ फंजाई. उसमें फंजाई का ग्रोथ होता है और फंजाई क्या करता है उस ब्रेड में से या अगर रोटी रखे तो उस रोटी में से अपने न्यूट्रिशंस को खींच लेता है और अपने सर्वाइवल को कंटिन्यू रखता है. और इस तरह के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे जिंदा रहते हैं उन्हें सेप्रोफाइट्स कहते हैं. तो यहाँ हमें क्या सीखने को मिला? पहला, सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन डिपेंड्स ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर. दूसरा, एग्जांपल ऑफ सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज फंजाई. एंड तीसरा, the organism with saprophytic mode of nutrition is called saprophyte. So fungi is saprophytes. Okay, now see what coming next. The fungal spores generally present in the air. When they land on wet warm things, they germinate and grow. So यहाँ हमें क्या सीखने को मिला कि जो फंजाई होते हैं, जो फंगल स्पोर्स होते हैं, ठीक है, वो एयर में ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, वो ऑलरेडी प्रेजेंट रहते हैं. So for their landing they need wet and warm things or something which consist humidity. Okay, so उन्हें humid चाहिए होता है, humid environment चाहिए होता है, humidity चाहिए होता है. ठीक है, तो जहाँ वेट एंड वार्म चीजें उन्हें मिलती हैं डेड एंड डिकेइंग मैटर में, वो वहां पे लैंड करते हैं. जर्मिनेशन के थ्रू रिप्रोडक्शन उनकी होती है, वो रिप्रोड्यूस करते हैं, जर्मिनेट करते हैं और इसी प्रकार से आगे ग्रो करते जाते हैं. ठीक है, what else? Some organisms live together and share shelter and
nutrient both. Such relationship is called symbiosis relationship. बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो आपस में ही साझेदारी कर लेते हैं. साझेदारी मतलब कुछ तुम मुझे दो, कुछ मैं तुम्हें दूंगा. ठीक है, ऐसी चीजें ये लोग आपस में शेयर करते हैं, जैसे शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स. किसी ने शेल्टर प्रोवाइड कर दिया तो किसी ने न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर दिया. फॉर एग्जांपल हमारे फादर ने रॉ मटेरियल मम्मा को प्रोवाइड किया और मम्मा ने उसका मील बना के हमारे फादर को प्रोवाइड कर दिया. सो इसमें क्या हो गया, द रिलेशनशिप seems as symbiosis relationship, right? For example, some fungi lives inside the root of plants. Here, plant provide nutrients to the fungus, and in return, fungus provide water and certain nutrients or certain minerals. तो यहाँ पे एग्जाम्पल से हमें क्या समझ आया कि फंजाई जो होते हैं वो प्लांट के रूट्स में पाए जाते हैं. यहाँ प्लांट ने फंगस को शेल्टर प्रोवाइड किया, बदले में फंगस ने वाटर और कुछ मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड किया प्लांट को. तो ऐसे रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं, सिम्बायोसिस रिलेशनशिप. नाउ सी व्हाट एल्स कम. Okay, in organisms called lichens, a chlorophyll containing partner, which is an algae or a fungus, live together. These fungus provide shelter, water, mineral to the algae or alga. Okay, what is the difference between algae and alga? Let me tell you. Algae is the plural form and alga is the singular form. So, fungus provide water and mineral to the alga, and in returns, the alga prepares and provide food to the fungus. Lichen में क्या होता है? Lichen is a chlorophyll containing partner. यहाँ पे fungus और alga साथ में रहते हैं. Fungus क्या करता है? एल्गा को शेल्टर प्रोवाइड करता है, वाटर प्रोवाइड करता है और मिनरल प्रोवाइड करता है. इन रिटर्न एल्गा क्या करता है, उन सब से फूड प्रिपेयर करके उस फूड को फंगस के साथ शेयर करता है. तो यहाँ पे अगेन एन एग्जांपल ऑफ सिम्बायोसिस रिलेशनशिप. ओके, नाउ व्हाट एल्स. नाउ द another topic is how nutrients are replenished in the soil. So, farmers spread fertilizers and manure to the crop, which generally contain nutrients such as nitrogen, potassium, phosphorus. Remember these things. कि जो मैन्योर होता है उसमें नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस जैसे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं. These are needed to be added time to time. ये जरूरी होता है टाइम टू टाइम देने के लिए, ताकि जो सॉइल है, the soil which eventually results in healthy plants, ताकि जो सॉइल है उनमें इन न्यूट्रिशंस की कमी ना हो और वो इवेंचुअली हमें क्या रिजल्ट दे, अच्छे हेल्दी प्लांट्स. सो यहाँ पे अगेन हमें सिम्बायोसिस रिलेशनशिप देखने को मिलता है. कैसे? हम सॉइल को मैन्योर और फर्टिलाइजर प्रोवाइड करते हैं ताकि उनमें नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस जैसे न्यूट्रिएंट्स की कमी ना हो, बदले में वो हमें हेल्दी प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट रिटर्न में देते हैं. ठीक है, so since the plant absorbs lot of nitrogen from soil, which result in deficient of nitrogen in the soil. प्लांट्स को ग्रो करने के लिए नाइट्रोजन की बहुत जरूरत पड़ती है, तो वो बहुत ज्यादा अमाउंट में इसे सॉइल से खींच लेते हैं. तो उसमें क्या होता है, डिफिशियंसी हो जाता है नाइट्रोजन की सॉइल में. As we all know that the air
contains plenty of nitrogen, but the plants are unable to absorb it. जैसा कि हम जानते हैं कि एयर में बहुत सारे नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं, पर प्लांट्स उसे डायरेक्टली अब्सॉर्ब नहीं कर सकते क्योंकि उनमें ऐसी कोई प्रॉपर्टी पाई ही नहीं जाती जो डायरेक्टली नाइट्रोजन को एयर से कंज्यूम कर सके। तो यहाँ क्या होता है, एक सिम्बायोसिस रिलेशनशिप होता है प्लांट और राइजोबियम में। So it has a bacterium called rhizobium which converts the atmospheric nitrogen into usable form. So यहाँ पे क्या होता है कि प्लांट राइजोबियम को अपने रूट में शेल्टर देता है, बदले में राइजोबियम क्या करता है, नाइट्रोजन को एयर से यूजेबल फॉर्म में सॉइल में कन्वर्ट कर देता है और वहां से प्लांट्स अपने नाइट्रोजन को यूज कर लेते हैं। But the rhizobium is not able to make its own food, so it lives in the root of grams, peas, moong, and other legumes. So remember this, rhizobium used to live in the roots of legumes like gram, peas, moongs, etc. They not only provide shelter to rhizobium, but yeah, because they are unable to make their own food, so plant provide them food. In return, the rhizobium provide them nitrogen from the air to the soil, from where the plants absorbs it. ठीक है? So ऐसे relationship again symbiosis relationship के examples होते हैं. With this, we finishes the chapter 1. I hope आप लोगों को chapters समझ में आए होंगे, topic समझ में आए होंगे. In case of any query, please let me know in the comment section. पसंद आए तो भी ज़रूर बताएं ताकि मुझे भी encouragement मिले आगे वीडियोस बनाने के लिए आप लोगों के लिए. So, after ending of this chapter, हम कुछ questions देख लेंगे. आप लोगों ने वो questions करने हैं.